हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय राघव क्लासेस में। आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज अ सेट? सेट होता क्या है? ये सेट हमने कई बार सुना है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं, बट इन मैथमेटिक्स हाउ द सेट्स कैन बी डिफाइंड, तो यू कैन से सेट्स इज अ well defined collection of distinct objects. देखिए यहां पर दो चीजें हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड इट मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. What is the meaning when I am saying it is well defined? For example, if I am asking you write down 3 lucky numbers, so may be possible आप कहते हैं सर मेरे 3 lucky numbers हैं 1, 2, 3. एक दूसरा बच्चा कहता है सर my lucky numbers are 4, 5, 6. और एक तीसरा बच्चा बोलता है सर मेरे lucky number है 5, 9 और 10. क्या सभी बच्चों का जो लकी नंबर वाला सेट होगा, जो कलेक्शन होगा, क्या वो सेम होगा? आप कहेंगे नहीं सर वो सेम नहीं होगा. So it is not well defined. Lucky numbers is not a well defined. Similarly, if I am going to ask you, write down the 3 best batsmen of Indian cricket team. So it may be possible your answer differ from the answer of your friend. But if I am asking you, write down first 3 natural numbers. If this question is given to all the students of a class that write down first 3 natural numbers, then I'm sure you all must write down these numbers only 1, 2 and 3. No other number can be written for that. So it is well defined. So this is the meaning when I'm saying it is well defined. Then comes distinct. What is the meaning when I'm saying a distinct? All these elements, they are said to be the elements of the set. कोई भी element set के अंदर repeat नहीं होना चाहिए. For example, here in this particular set, I am writing 3 twice. Here 3 is written once. If I am saying this as set A and this as set B, then definitely A और B हमारे equal sets ही हैं. कोई भी element set के अंदर repeat नहीं होता है. So there is no purpose of writing any element twice in a set. So this and this both are the same set. So we generally don't write a set like this. So set always consists of distinct objects. Even if you write any element twice or thrice, hardly matters. हम उसको ignore कर देते हैं. So what is a set? Set is a collection of well-defined objects. Well-defined distinct objects. और बच्चों जैसे आप लोग देख पा रहे हो, for sets we always use this particular symbol. The curly brackets are used to write down the set. और ये जो है ये एलिमेंट ऑफ द सेट कहलाते हैं. सो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 1, 2 एंड 3. 3 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट. सो दिस इज हाउ द सेट्स are defined and this is how the elements are written inside the set. This set consists of 3 elements. Another question that comes to our mind, ये जो element है 1 and we are using this symbol for belongs to. क्या 1 एक element है और वो element इस set के अंदर present है? Yes. So this symbol that we are using means belongs to. Belongs to. So I can say 1 belongs to set A. Can I say 2 belongs to set A? Yes, 2 is also there in set A. And similarly, if I'm asking you, is 3 belongs to set A? Yes, 3 is also in the set A. But if I'm writing, say 5, क्या 5 इस set के अंदर present है? You will say no sir, 5 is not present in this particular set. And if it is not present, we are using this symbol, and what this symbol means? Not belongs to. 5 does not belongs to set A. So this is the meaning of belongs to a set. How many elements are there in a set and whether a particular element
belongs to a set or not. Then comes, after this topic, the next question that comes to anybody's mind is how to define a set and how to represent a set. This is how the sets can be defined. Now the second question is, what are the different ways to represent a set? So I must say, bachcho, there are two ways to represent a set. One is called by the name roster form. Roster form is one form of writing, or you can say representing a set, and the second way of representing a set is called as set builder form. So these are the two forms to represent a particular set. Now what this roster form means, like if I write a set like this, जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, if the elements are written in a set like this, we call this as the roster form. और अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को एक सेंटेंस की फॉर्म में, how the set builds, ये सेट बना कैसे है, what is the reason behind it, अगर हम उसको लिखते हैं, then what we call it a set builder form. For example, अगर मैं इसी सेट को set builder form में लिखना चाहता हूं, सेट A को set builder form में लिखना चाहता हूं, तो I will write X such that X belongs to N and N is less than or equal to 3. आप कहेंगे सर, what is the meaning of this? This is the way of representing a set in the set builder form. See how I write X, and this X belongs to N, and when I am writing capital N, it means a natural number. क्या यहाँ पे सारे natural numbers लिखे हुए हैं? No. N is less than or equal to 3. N means natural number. तो natural number 3 या 3 से छोटा है. So this is the way of representing a set in a set builder form. So if you know all these concepts, then your first exercise in first chapter is over. इसमें केवल इतना ही पूछा जाएगा, whether it is a set or not, whether it is a well defined or not, whether this element belongs to the set. Write the set in the roster form, write the set in the set builder form. इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, देयर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स. जो सेट की हम बात करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के सेट्स आपको देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if we want to classify the sets, then there are a number of ways to represent the set. For example, the first way of representing, or you can say one form of the set, is called by the name empty set. Now, as the name suggests, नाम देखकर क्या लग रहा है बच्चों? Empty set, a set that consists of no element. It is absolutely empty. अगर मैं आपको कहूं how to represent this empty set in the roster form, you will say, sir, कुछ ऐसे लिखेंगे. Exactly. आप देखिए इस सेट के अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा. There is not a single element in this particular set, and such a set is called by the name empty set. और यहां पर मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूं बच्चों, इस सेट को नल सेट भी बोलते हैं, या हम इस सेट को void सेट भी बोलते हैं. And this is one way of representing a set. And the second way, इसी सिंबल के लिए हम ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं, and what we call this symbol, phi. So if this symbol is written anywhere, what does it mean? It means it is representing a empty set or null set, or you can say a void set. So not a single element is there. Then there is another form of a set called by the name finite set. As the name suggests, what is the meaning of finite? ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं. So what is a finite set? A set consists of finite number of elements. For example, I write this A, E, I, O, U. The vowels, the first 5, or you can say the vowels in English alphabet, English language. So A, E, I, O, U. This is a finite set. Why it is a finite set? Because it consists of finite number of elements. How many elements are there? 5 elements are there. And another form of a set is your
infinite set. So once again, I think if a set consists of infinite number of elements, you cannot count them. What such a set is known as? Such a set is called by the name infinite set. For example, set of all natural numbers, set of all whole numbers, set of all real numbers. So if I'm asking you, can you count how many natural numbers we have? Can you count how many real numbers we have? Then the question is no, sir, we cannot count. So such a set can be represented in this particular way. I'm writing dot 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 for this. And what does it mean? We cannot count the number of elements present in this particular set. So this is your finite set and infinite set. So I hope you are easily understanding what the empty set means, what is a finite set and what is a infinite set. Then another way, or you can say another form to represent a set is called by the name equal set. Equal set. I am writing two sets here. For example, A is say 1, 2 and 3. And there is another set B and this consists of 2, 3, 1. Now what the question is? If I am going to ask you how many elements are there in this set, you will say, sir, it has 3 elements. And how many this set has? This set also has 3 elements. Now the question comes, what are those 3 elements? आप कहेंगे सर इस केस में we have 3 elements 1, 2 and 3. And in this case we have again 3 elements 2, 3 and 1. So if I'm asking you what is the difference between them, आप कहेंगे सर इनका order different है. इसमें 2 बाद में लिखा था, इसमें आपने 2 पहले लिख दिया. इसमें 1 पहले लिखा था, इसमें आपने 1 बाद में लिख दिया. Hardly matters. आपको क्या देखना है? Equal set है या नहीं? How many elements are there? And the second one, whether all the elements are same or not. क्या इसके अंदर 1 है? Yes, इसके अंदर भी 1 है. इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है. Both the set consist of same elements. And if both the set consist of same elements, exactly same elements, we call these two sets as equal sets. तो बेटा ये equal set होता है. एक और कंसेप्ट है, एक और वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं और उसका नाम है इक्विवेलेंट सेट. Equivalent set. What is the meaning when I'm saying the two sets are equivalent or not? देखिए, equivalent के केस में आपको elements से मतलब नहीं है. You have to check the number of elements. For example, let us say we have a set P. It consists of 2 elements A and B. And let us say there is another set Q and it consists of once again 2 elements say M and N. यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है कि जब भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे किसी सेट के अंदर, then the elements are represented with small letters and the name of any set is always represented with a capital letter. ये डिनोशन है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं कि ऐसा क्यों होता है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग दैट. सो नाउ इफ आई एम आस्किंग यू, आर दीज टू सेट्स इक्वल? तो आप कहेंगे नो सर, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दिस सेट कंसिस्ट ऑफ A and B and this set consists of M and N and these elements are not equal. But at the same time, if I'm asking you, are these two sets equivalent set? Yes, they are. What you are going to check? How many elements are there in this set? If I'm asking you, कितने elements हैं? आप कहेंगे सर 2 ही element है. इसमें कितने element हैं? इसमें भी 2 ही element है. So are the number of elements same? Yes, the number of elements are same. And if the number of elements are same, what can I say? The two sets are equivalent set. अगर मैं यहां पर कुछ चेंज कर देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि क्या ये दोनों सेट अब इक्विवेलेंट सेट है, तो आप कहेंगे नो सर, P में 2 ही एलिमेंट है, Q में 3 एलिमेंट है. Since the number of elements are not same, not equal, hence they are not equivalent set. So I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी
कि इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है। इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इससे जो अगली एक्सरसाइज आपको मिलेगी, आई होप द थर्ड एक्सरसाइज, वहां पर आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मैं उसके बारे में भी आपसे भी यहां बात करना चाहूंगा, और वो कंसेप्ट है आपका सबसेट। व्हाट, क्या कहा बच्चे मैंने? सबसेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग व्हेन आई एम सेइंग अ सबसेट? सबसेट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले जो सबसेट है वो एक सेट ही होता है। सबसेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेट। कैसे? A is said to be a subset of B। सबसे पहली चीज, ये जो मैंने सिंबल बनाया है कुछ ऐसा, ये आपको देखने में C जैसा लग रहा होगा। C को थोड़ा सा लंबा खींच दीजिएगा। सो दिस बिकम्स अ सिंबल फॉर सबसेट। A is said to be the subset of B। Listen carefully. A is said to be a subset of B if every element of A belongs to set B। A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करने चाहिए। कैसे लिखेंगे? For every A belongs to A, जो भी एलिमेंट सेट A में बिलोंग करेगा, that element must belongs to B as well। ठीक है? For every A belongs to set A, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे they must belongs to set B as well। It implies, if it implies A belongs to B, then we say A is a subset of B। A is a subset of B। एक यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट और इस्तेमाल होता है आपकी एनसीईआरटी में। पेज नंबर 10 पर आप देखोगे तो वहां पर एक प्रॉपर सबसेट की बात होती है। प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट? देखिए, A is a subset of B if every element that presents in set A must present in set B, but there must be some element in B which should not be there in set A, then I will say A is a proper subset of B। Definitely थोड़े से कंफ्यूज हुए हो गए आप कि मैंने क्या बोल दिया। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेट है A, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट है B, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या A B का सबसेट है? तो व्हाट यू हैव टू चेक, are the elements of A, what are the elements of A? 1 and 2, are they present in set B? क्या वो सेट B में प्रेजेंट है? Yes, 1 और 2 दोनों इस सेट में प्रेजेंट हैं। तो I will say A is a subset of B। Rather I can say A is a proper subset of B। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर सबसेट? देखिए यहां पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं 3 and 4 जो B में तो प्रेजेंट है लेकिन वो A में प्रेजेंट नहीं है, यानी B इज बिगर देन A। और अगर B A से बड़ा सेट है तो A जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा B का। मान लीजिए मैं यहां पर 3 और 4 भी लिख देता हूं, और अब मैं आपसे पूछता हूं क्या A B का सबसेट है? जो कि मैंने अपनी डेफिनेशन बताई। देखें, A में 4 एलिमेंट्स हैं और B में भी 4 ही एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं। क्या A के सारे एलिमेंट B में है? यस, A के सारे एलिमेंट B में है। तो क्या A B का सबसेट हुआ? यस, A इज अ सबसेट ऑफ B, बट A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A B का प्रॉपर सबसेट नहीं है। हालांकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफी कम मिलेंगे आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट के ऊपर, बट मेरा काम था आपको यह बताना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सबसेट एंड अ प्रॉपर सबसेट। सो आई होप यहां तक आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब इसी सबसेट के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं
जो आपको समझनी है. इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th का ये पहला चैप्टर है और काफी आसान चैप्टर है. व्हेन यू गो फॉर दिस चैप्टर यू विल फाइंड इट टू बी वेरी वेरी सिंपल. काफी आसान चैप्टर है, इसमें मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं है और काफी इंटरेस्टिंग भी एट द सेम टाइम. देखिए मैंने एक सेट लिखा ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स लिखे. नाउ द क्वेश्चन कम्स, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए. ए के आप सारे सबसेट्स लिखिए, ऑल द सबसेट्स. तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो सबसेट होता है वो एक सेट होता है. सो इफ you are going to write down all the subsets of this, what you will say? Sir, 1 is one of the subset, definitely. 2 is another subset. 3 set is also a subset of A. Similarly, if you are writing, then 1, 2 is also a subset of this set A. अब मैं 1, 2 लिखूं या 2, 1 लिखूं, बात एक ही है. आपको बताया था ये सेम सेट है, एलिमेंट्स आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता. Then we have another set, say 1, 3. We have another set, say 2, 3. And we have another set 1, 2, 3. याद रखें, every set, आप कहेंगे सर ये और ये तो सेम हो गया. अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, every set is a subset of itself. हर सेट अपना सबसेट भी होता है, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है. इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए. अब जरा काउंट करके देखो कितने हुए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. एक और सबसेट बाकी रह गया जिसको मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है. आपसे पूछना चाहूं कि वो सबसेट कौन सा है. आप कहेंगे सर सारे तो लिख दिए, कुछ तो बचा नहीं. तो जरा ध्यान से देखिए, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है. इसमें 1 है, 2 है, 3 है और कुछ नहीं है. क्या कहा मैंने, गौर करें. 1 है, 2 है, 3 है और कुछ नहीं है. ये जो कुछ नहीं है इसको भी बच्चे आपको लिखना पड़ेगा. और ये कुछ नहीं जो होता है ये वही एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, जिसको आपको मेंशन करना जरूरी है. सो नल सेट और यू कैन से द एम्प्टी सेट is also the subset of every set. ये हर सेट का सबसेट होता है. This is the subset of all the sets that are possible. Alright? आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, hardly matters. इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता. Now, if I'm going to ask you how many subsets are possible, तो आपने चेक करा, आपने कहा कि सर जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो 8 है. आपने काउंट करके देखे. मैं यहां पर एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप नंबर ऑफ सबसेट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. देखिए यहां पे चेक करिए कितने एलिमेंट्स हैं, 3. अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, 2n. आप कहेंगे सर ये n क्या होता है, व्हाट दिस n इज. N is number of elements in the set. सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो n है. बताइए कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर. There are 3 elements, 1, 2 and 3. तो अगर 3 एलिमेंट्स हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि 2^3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2^3 8 होता है. और आप चेक करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 subsets are there. 8 subsets. लेकिन यहां पर एक और मैं छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा. ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स है, लेकिन अगर मैं आपसे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अब ये कई कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. जब आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर देयर. देखिए ये सारे सबसेट हैं और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये वाला सेट है ये प्रॉपर सबसेट नहीं है. ध्यान रखें, सबसेट तो है, प्रॉपर सबसेट नहीं है. ए के सारे एलिमेंट
ए के सारे एलिमेंट यहां पर है, इसके सारे एलिमेंट यहां पर है। अगर ऐसा है तो ये सबसेट तो है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा होता जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तभी हम इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ये सेट और ये सेट तो इक्वल सेट है, तो ये प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होता। तो हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर देयर? 2n-1। ये 1 इसकी वजह से किया हुआ है, इसको शामिल नहीं करते। सो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल, यू विल से 8 सबसेट्स आर पॉसिबल। एंड इफ आई एम आस्किंग यू हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर पॉसिबल, you will say sir this is 7 number of proper subsets are possible। ये आपको ध्यान रखना है। और एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसको मैं बताना चाहूंगा, वो है पावर सेट। जब हमने ये सबसेट समझ लिया, ये सबसेट हमने समझ लिया है, now let us try to understand one more concept इन दिस वीडियो ओनली। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं चाह रहा हूं कि कम से कम पहली 3 एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की हम कवर कर लें। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अब पावर सेट। पावर सेट, ये पावर सेट क्या होता है? लिसन वेरी केयरफुली। पावर सेट इज अ सेट which consist of all the subsets of the given set। What does it mean? इस सेट के ये सारे क्या हैं? क्या है? सबसेट, सारे सबसेट्स हैं। इसके ये सारे सबसेट हैं। अगर इन सब को मैं एक बड़े सेट के अंदर बंद कर दूं तो इसको कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। Once again, what is a power set? It is a set which consists of all the subsets of the given set। तो ये हमारा कंसेप्ट क्या है? पावर सेट। ठीक है। अब ये एलिमेंट का काम करेगा। अगर मैं आपसे कहूंगा क्या 1 बिलोंग करता है पावर सेट में? बहुत से बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। नो, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट। आपके सर 1 है तो सही। नो बेटा, 1 एलिमेंट नहीं है। यहां देखिए, अब ये है एलिमेंट इस सेट का, ये जो है ये एलिमेंट है ना। दिस इज ट्रू, 1 इज एक्टिंग एज एन एलिमेंट, सो दिस बिलोंग्स टू द पावर सेट। दिस इज रॉन्ग, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर सेट। एक और हम टॉपिक करेंगे बच्चे, इंटरवल्स ऑफ दी सेट, इंटरवल्स ऑफ दी सबसेट्स, उसके बारे में हम और बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। व्हाट डज इट मीन व्हेन आई एम सेइंग इंटरवल? देखिए, मैथ्स में हम अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं। व्हाट इज दिस ब्रैकेट नोन एज? हम सभी जानते हैं, हम इसको सिंपल ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ठीक, अलग अलग पर्पस के लिए हम इन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रैकेट का इस्तेमाल अभी हमने कहां किया? सेट के लिए किया, टू रिप्रेजेंट अ सेट। अब मैं आपको ये बाकी के जो 2 सेट बचे हैं, 2 जो ये आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी बात करूंगा। इसके लिए अब हम एक नया शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं और वो है ओपन सेट। और हम इसके लिए वर्ड यूज करने वाले हैं क्लोज्ड सेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, ये तो आपने देखा है, क्या कभी आपने छोटी क्लासेस में इस तरह का भी कोई ब्रैकेट इस्तेमाल किया? आप कहेंगे सर ये तो गलत है, एक तरफ आप ऐसे वाला बना रहे हो, एक तरफ आप ऐसे बना रहे हो। ऐसा ब्रैकेट तो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल सही, आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, बट फ्रॉम क्लास 11th ऑनवर्ड आपको ये यूज करने पड़ेंगे एंड इट हैज अ सेंस, इट हैज अ मीनिंग। क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए एक x है, अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग्स टू 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, 1 से बड़ी है और वो 2 से छोटी है। अब मैं आपसे पूछूं
क्या 1 और 2 इसमें इंक्लूड होंगे? आप कहेंगे सर नो, दे आर नॉट। इसको बेटा इंटरवल्स की फॉर्म में, व्हाट आई एम डिस्कसिंग, इंटरवल्स। इंटरवल्स, ये जो एलिमेंट है x क्या बता रहा है? x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। सो वी आर गोइंग टू यूज ओपन ब्रैकेट्स फॉर दिस। ओपन ब्रैकेट का हम यहां इस्तेमाल करेंगे। ओपन का मतलब है ये 1 भी शामिल नहीं है और ये 2 भी शामिल नहीं है। देखिए अगर x ऐसे होता, व्हाट डज इट मीन? x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। अब यहां पर देखिए फर्क है। If I want to represent this in terms of interval, it can be represented this way, 1, 2 और यहां पर ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। 1 पर ओपन बनाया, 2 पर क्लोज बनाया और ऐसे को हम सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड। और यू कैन से क्लोज्ड एट राइट एंड। देखिए ये 1 पर ओपन है, 2 पर क्लोज है। क्या मतलब? ये 2 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। 1 से बड़ी वैल्यू शामिल है और 2 या 2 से छोटी वैल्यू शामिल है। सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, इसको कैसे लिखेंगे? x 1 के इक्वल या उससे बड़ा है, 2 के इक्वल या उससे छोटा है। दिस टाइम वी हैव टू यूज क्लोज्ड ब्रैकेट। सो वंस अगेन दिस इज a closed bracket, ये दोनों तरफ से क्लोज है तो we call it a closed interval. And if I'm writing this way, what does it mean? X is greater than or equal to 1 and less than 2. 2 is not included. तो इसको भी बच्चे हम इस तरह से लिखेंगे। And what is this? देखिए इससे मिलता जुलता है। ये यहां पर ओपन था, ये क्लोज है, ये यहां क्लोज था, ये यहां पर ओपन है। So this is once again semi closed. This was closed at right end and what is this? कहां पर क्लोज है? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। तो क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोज्ड एट लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड बच्चों। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इन्फिनिटी होता है, इट इज समथिंग विच इज नॉट अचीवेबल। अगर मान लीजिए मैं इस तरह से लिखता हूं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी, अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं, कैसे लिखेंगे इसको? इंफिनिटी पर कभी भी बच्चों याद रखिएगा क्लोज्ड इंटरवल नहीं बनता है। इंटरवल कभी नहीं बनेगा क्लोज्ड, क्योंकि इंफिनिटी को आप कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इंफिनिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं, सो यू कैन नॉट यूज अ क्लोज्ड ब्रैकेट देयर। तो ये कुछ इंटरवल्स के बारे में मैंने आपको बात बताई। अब इन्हीं को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, if we want to represent them on a number line, वो जरा वो भी आप समझिए। ये हमारी नंबर लाइन है। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, -1 एंड -2। x 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो बच्चे हम इसको कैसे करेंगे? मैं यहां पर थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, इसको आप ऐसे करके शो करोगे। आप कहेंगे सर ये सर्कल आपने बनाए हैं, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि 1 शामिल नहीं है और 2 भी शामिल नहीं है। 1 और 2 के बीच की सारी वैल्यूज इसके अंदर शामिल है। यहां पर देखिए 1 शामिल नहीं है लेकिन 2 शामिल है। अगर हम इसका बनाना चाहते हैं तो 1 पर तो ये अनशेडेड रहेगा, लेकिन 2 पर हम इसको शेड कर देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? इस वाले इंटरवल को। सिमिलरली अगर मैं इस वाले इंटरवल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं नंबर लाइन के ऊपर, देखिए ये 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। इस केस में हमें ये दोनों को ही शेड करना पड़ेगा। दिस रिप्रेजेंट दिस इंटरवल ऑन द नंबर लाइन। एंड लास्ट, अगर हम इस वाले इंटरवल की बात करें, इस वाले इंटरवल की बात करें, बताइए क्या होगा? 1 पर क्या होगा? 1 पर क्लोज है और 2 पर ओपन है। जहां ओपन होता है वहां पर हम उसको शेड नहीं करते। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस वाले इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट्स के बारे में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें और भी बाकी हैं। हम इससे अगले वीडियो में बात करेंगे कि सेट को कैसे और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हम अगली क्लास में
वेन डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, यूनियंस के बारे में बात करेंगे, इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे. इट मींस देयर आर लॉट टू स्टडी इन दिस चैप्टर. यहां तक आपको समझ में आया होगा. हम अगले क्लास में इससे आगे का डिस्कशन करेंगे. टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर.